اور مدارس کی بات نہ کی جائے تو بہت اچھا ہے. کئی مدارس ایسے ہیں میں جانتا ہوں بند ہونے کے کگار پر. میرے بھائیو، کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ امت ہے لوگوں کے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ آج قوم کے لوگوں نے صرف یہ سوچ لیا ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہمیں اپنے سے مطلب ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے سے مطلب ہے. نہیں میرے بھائی، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. یہ قوم تو لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. یہ قوم آئینہ بن کر آئی ہے کہ چہرہ دکھایا جائے. اور یہ قوم جب سو جائے اس قوم کے بارے میں کیا کہا؟ جو قوم ہمیشہ کھڑی رہتی تھی آج اس قوم کے بچے پیچھے ہیں. میرے بھائیوں، تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو اجاگر کیجیے، بیدار کیجیے، ان کو آگے لائیے. آج ہمارے بچے گونگے بنتے جا رہے ہیں، وہ بولنا نہیں جانتے ہیں. لوگوں کے سامنے اگر 2 منٹ باتیں کرنی ہو تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا مدارس میں یہ کام نہیں ہو رہے؟ مدارس میں اعلیٰ پیمانے پر کیے جا رہے، لیکن وجہ کیا ہے ذہن کو خود بنانے کا؟ وجہ کیا ہے اس بچے کو گونگے بننے کا؟ وجہ یہ ہے دہشت، وجہ ہے ڈر. اس قوم کے اندر ڈر بچ چکی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حب الدنیا کراہیۃ الموت. اور جب اس دنیا کے اندر موت اور دنیا کی محبت زیادہ آ جائے گی تو یہ دنیا مشکل بن جائے گی. اور یہ قوم آج وہی کر رہی، اسے دنیا تو مل گئی، اسے تو لوگ مل گئے، اس کو تو دولت مل گئی، لیکن یہ قوم ابھی بھی مردہ ہے. اپنے آپ میں مت سوچو، صرف اپنی فکر مت کرو. اس قوم کے اندر جتنے امت ہے، جتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی فکر کرو. ان تمام لوگوں کی فکر کرو. ان گھروں کی بھی فکر کرو جن کے گھروں میں چولہے بھی نہیں چلے. ان بچوں کے بارے میں بھی فکر کرو جس کے باپ کے سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے. ان کا بھی فکر کرنا ہوگا. آج ہمارے یہاں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جہاں سے، وہ یہ ہے موبائل، سوشل میڈیا کا غلط استعمال. میں یہ نہیں کہتا موبائل غلط ہے، موبائل اگر اچھے سے استعمال کیا جائے تو فائدہ مند بھی ہے. موبائل پر بہت سارے پیسے آ چکے ہیں جن سے آپ 1 منٹ میں کئی حدیثوں کا پتہ لگا سکتے ہیں، کئی حدیثوں کا، کئی قرآن آیات کا صحیح ہے غلط ہے کیا ہے سب پتہ لگا سکتے ہیں. آپ غلط استعمال کریں وہ آپ پر ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کا بچہ کیسے استعمال کر رہا ہے. آج ہماری ماں ہے، یہ قوم کی عورتوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے. یہ قوم کی عورتیں سو چکی ہیں کہ بچہ بھی 4 سال 3 سال آج اس قوم کے لوگ میں ناچنے والے پیدا ہوتے ہیں. افسوس ہے، ناچنے والے اس قوم کے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ایسے نام ہے مسلمان کے جو ناچ رہے ہیں، پڑھ کر ناچ رہے ہیں. کیا اس کی ریزن یہ تھی کہ جب بچے چھوٹے رہتے ہیں ان کی دماغ بالکل سادہ کاغذ کی طرح ہوتی ہے، اور ان بچوں کو موبائل دے کر آج ہماری مائیں گانا لگا کر دے دیتی، لے سن. اب وہ بچہ نہ بول سکتا ہے نہ کچھ، اس کے سرحدے پر موبائل لگے کیونکہ ان کو گھر کا کام بھی کرنا ہوتا. موبائل لگا کر رکھ دیتے ہیں گانے لگا کر، یا سیریل جو ان کو دیکھنا ہے. اب سیریل کیونکہ بعد میں ان کو بیٹھ کر کرنا رہتا گھر والوں پر، شوہر کا کسی سیریل کی وجہ سے نہ جانے کئی گھر ٹوٹ گئے ہیں اور ان کو بیٹھ کر کرنا رہتا ہے. ساس پر بیٹھ کر کرنا رہتا ہے، ساس سے کیسا ڈرا جائے، شوہر کی کیسی نافرمانی کی جائے، یہ سب بیٹھ کر کرنا رہتا ہے. تو ان کو آواز سے مطلب رہتی، وہ لگا کر رکھ دیتے سیریل اور سنا کرتے کام بھی ہوا کرتا ہے. یا گانے لگا کر رکھ دیتی کیونکہ ان کے جب شادیاں گھر میں ہوتی آج گانے والے کو باہر سے نہیں بلانے کی ضرورت ہے. مان بھی نہیں سکتے بچے ہمارے سوشل میڈیا پر مجھے مسلمان کو دیکھ کر بڑی افسوس ہوتی. یہ بچیاں 18 سال 15 سال 12 سال کی بچیاں اتنی گمراہ ہو چکی ہیں، اتنی دین کی بات دین سے دور ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا پر آ کر ننگی تصویر پوسٹ کرتی ہے، سیریل بناتی ہے، ریل بناتی ہے، ناچ کر ریل بناتی ہے، اور ماں بھی شامل ہوتی ہے. یہ باپ جس کے ہاتھوں پر، جس کے چہروں پر، جس کے پیشانی پر گڈھے بنے ہیں، نماز کے آثارات ہیں، یہ باپ یہ بے شرم یہ بے غیرت بھی نہیں بولتا ہے اور موبائل لا کر اس کا ڈاٹا لگاتا ہے اس کے اندر. معاف کرنا حقیقت بولنا تلخ ہے میری زبان. میرے بھائیوں اگر ابھی بھی نہیں جاتے تو آج جتنی تعداد میں
सकते, इतनी तादाद में बच्चे मुंतजर हैं। अभी कुछ दिन पहले का वाकया है कि एक अदबी साहब जो इल्म फनून के नाम से मशहूर है, वहां पर एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ, आलिमा बच्ची, गैरों को तो छोड़ो, अल्लाह अकबर, जो नहीं पढ़ती वो बच्चियां नहीं, आलिमा बच्ची है, आलिमा, वो मुर्तद हो गई, वो इस्लाम को छोड़ दी और इस्लाम से फिर जाने के बाद वो कोर्ट में जाकर कहती मैं बालिग हो चुकी हूँ और मुझे इजाजत है कि मैं निकाह कर सकती हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ, और मुर्तद हो गई। आलिमा बच्ची गैरों का तो छोड़ो, ये वाकया भी पेश आया नजरों के सामने, लेकिन इस उम्मत का आँख अभी भी नहीं खुला है, अभी भी ये गफलत में है, अभी भी ये जागी नहीं है। कौन बच्चियों का ये हाल है, ये बच्चियां बापर्दा कब होंगी जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्तर बिदा बिद्दीन तरबत यदा, जब तुम शादियों में दीन नारी को तरजीह दोगे तब ये बच्चियां दीनदार हो। जब घरों में रोजाना लड़ाई करने वाली, झोटा पकड़कर नोचने वाली और शौहर की नाफरमानी है, कोई काम कर तो जाकर करो, चाहे तो बना, तुम्हारे नौकर बच्चे हैं, तुम्हारा मेरा पढ़े तुम्हें इतना दिया खरीद लिया, ये बनाऊंगी, जो करना कर लो, क्या कर सकते हो, ये ले चुके हैं, क्या कर सकते, यही से गड़बड़ी है, तरबियत में यही से गड़बड़ी है, जड़ यही से गड़बड़ी। और जब जड़ ना सही हो, इस दीवार की अगर जड़ ना सही हो, दीवार रुकने का कोई नहीं, तो दीवार नहीं रुक सकता। और जब जड़ खराब होता ना तो दरख्त भी नहीं रुकता, तो हमारी जड़ खराब है इसलिए दरख्त सही नहीं होते। जब हम ही खराब है तो हमारे बच्चे कैसे अच्छे हो सकते हैं। कम से कम तुम बच्चों के सामने कम से कम बैठ कर कुरान तो पढ़ो, इसीलिए कहा गया सुन्नत। आज मोदी साहब रूम में नमाज पढ़ने लगे तो सुन्नत थी, मोदी साहब हाँ कहो बहुत तुम सुन्नत छोड़ने लगे, बढ़िया बिस्तरा वो होने वाला है आपका। अरे भाई तुम उसके मालिक हो, रूम में पढ़ा, तुम देख रहे हो, रूम में जाकर पढ़ लेता बेचारा क्या गलत करता है, गलत करो, कम से कम उसके बच्चे नमाज़ी तो बन गए। आदत तो डालो अपने बच्चों को सुन्नत पढ़ते हुए। एक 4 साल का बच्चा देख रहा आपको सुन्नत पढ़े, आप क्या करेगा, नमाज पढ़ रहे, वो सुन्नत फर्ज तो जानता नहीं, नमाज पढ़ रहे, क्या करें, सुन्नत पढ़े। अब धीरे 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 वो भी आगे बढ़ जाएगा देखते देखते, और ना हम घर में सुन्नत पढ़ते इसलिए हमारे बच्चे देखते नहीं, और इसलिए हमारे बच्चे नमाज पढ़ नहीं आते। आज बाप को आइडिया होना चाहिए, बाप की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को अदा कीजिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसके 3 अमाल उसके साथ बाकी रहता है, 3 अमाल बाकी रहता, सारे अमाल मुनक़ते, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी खत्म, दोस्तों की दोस्ती खत्म, शौहर बीवी का रिश्ता खत्म, लोगों की मेल जोल खत्म हो गई, बाकी है तो सब के जारिया बाकी है जो अपने हाथ से दे दिया आपने। मिसाल के तौर पर कहीं मस्जिद की तामीर हो गई, मस्जिद में काम कराया जा रहा, बच्चों को पढ़ाया जा रहा, उसको मदारिस के अंदर आपने वहां पर दे दिया ताकि उनकी किफायत हो सके, तो वो सब के जारिया जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी, जब तक वो मस्जिद में सदाएं बुलंद होती रहेंगी, आपको मरने के बाद भी सबक मिलता रहेगा। और एक इल्म, ऐसा इल्म जो लोगों को फायदा दे। आज यहाँ के बारे में एक आलिम है जिनके बारे में बहुत मशहूर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे बड़े डॉक्टर हमेशा कहा करते हैं वहाँ पर एक आलिम है जिनकी किताबें बहुत कीमती हुआ करती हैं। अब प्रभु साहब मेरे बड़े डॉक्टर हमेशा मेरे से उनकी किताब मेरे जरूर पढ़ना बेटा बहुत, लेकिन उनकी उनके लिए वो सबके जारिया बन गई। अगर वो दुनिया से चले जाए तो उनके लिए वो सबके जारिया बन जाए। जब तक उनकी किताबों से पढ़कर लोगों के दरमियान बयानात लोगों को बताया जाएगा और एक भी अमल कर लिया तो मेरे जरिया और उनकी किताबों के जरिए से जो मैंने बताया या किसी ने बताया और अमल किया गया तो उनको सवाब मिलता रहेगा, लेकिन पहुंचते रहे। और एक लास्ट है, और वलदुन सालिह, एक नेक औलाद, नेक औलाद
लिए दुआ करते हैं। जब मेरे भाई हाथ कभी भी उठाओ तो अपने माँ बाप को फरामोश मत करो, उनको भी दुआ, कैसे भी थे लेकिन तुम्हारे माँ बाप थे, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें बहुत पोस कर बड़ा किया, उनके लिए दुआ किया करो। रब्बे रहमुमा कमा रब्बानी सगीरा, अल्लाह ने कितना बेहतरीन दुआ सिखाई। तरबियत औलाद में जिम्मेदारी बच्चों की अब है कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। और नेक औलाद कब बनेगा? जब बाप नेक होगा। बाप कब सीधा होगा? जब उसकी जड़ मजबूत होगी। और जड़ कब मजबूत होगा? जब उसको अच्छी तरीके से सींचा जाएगा। और बाप जब अच्छा होगा तो बेटा भी अच्छा होगा। बेटे को नमाज देने की जरूरत ही नहीं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेटा कहता है तो चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने। अब कौन से मुंह से कह सकते, कौन से चेहरे से, कौन सी नजर से अपने बेटे को नजर मिलाकर बात करें? चलो बाप कहते चलो ठीक है, बेटे को कहते चलो ठीक है आ रहा हूँ। अगर बच्चे माँ मैं चलो नमाज, अरे रुक भला सीनियर बाकी ये पाठ है बस, इसके बाद चलते हो नमाज। ये आज हमारे अंदर बुराइयां है मेरे भाई। हमें और आपको इस पर गौर करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। अल्लाह के नबी ने क्या किया? और वलदुन सालिह, एक नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे, जब भी उसका हाथ उठे तो आपको जरूर याद रखे। और ये नेक औलाद तभी होगा जब माँ बाप, इसकी दलील हदीस है, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहद्दिदानी व युनस्सरानी व युनज्जिरानी। माँ बाप पर बच्चे जाते हैं, माँ बाप चोर हो, चमार हो, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, नशावत करने वाले, बच्चे भी नशावत करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे करते रहेंगे। तुम्हारे सामने नहीं करते तो क्या होगा? वो नशा नहीं करते, तुम्हारे पीठ के पीछे करेंगे। तुम्हारी आदत है, अदब करते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तो करते हैं, क्योंकि आदत करते हैं। यकीन करिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा? बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किस पर? फितरत इस्लाम पर। वो मुसलमान रहता है, वो अहले ईमान रहता है। अल्लाह यकीन। अब आगे मामला बदल रहा है। अगर उसके माँ बाप यहूदी बने तो वो बच्चा यहूदी बन जाएगा। अगर उसके माँ बाप ईसाई है तो बच्चा आगे चलकर ईसाई बन जाएगा। अगर उसके माँ बाप नसरानी और अगर उसके माँ बाप मजूसी है तो आगे चलकर मजूसी बन जाएगा। जिस तरीके में वो बच्चा उसी में ढल जाएगा। अगर माँ बाप गुटखा और पान खाने वाले हैं तो ये मत सोचिए आपके बच्चे नशा नहीं कर रहे, आपके बच्चे आपसे ज्यादा नशा करने वाले बन जाएंगे। आज हद तो ये है, शर्म की बात तो ये है, बाप अपने आप को बाप कैसे कहलाता है? बेटे को कहता है ले 10 रुपया, सिगरेट लेकर आजा, गुटखा लेकर आजा, पान लेकर आजा। तुम्हें शर्म नहीं लगती? एक मासूम बच्चे से तुम ये कहते हो सिगरेट लेकर आजा, गुटखा लेकर आजा, पान लेकर आजा। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे भाइयों, ये बच्चों से हम आदि बना रहे, ये बच्चे हमारे मासूम हैं, इन्हें हम अच्छे अखलाक में, अच्छे किरदार के अंदर उनको मुज़य्यन करें। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस हज़रत लुक़मान हकीम की को देख लेते। जब उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की, 10 नसीहतें की, तो सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बितरतीब जिक्र किया। उन्हीं में से चंद। आज माँ बाप बच्चों की तौहीद को सही नहीं करते, अकीदत को सही नहीं करते, इसलिए आगे चलकर खुराफात जो दुनिया के अंदर दिखाई देता है, ये जो महीना चले इसमें कितना खुराफात है सब जानते हैं। इसलिए हम बच्चा भी डर रहा है अकीदत पर। हज़रत लुक़मान कहते हैं या बनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लत्ती जिगर, ला तुश्रिक बिल्लाह, शिर्क नहीं करना, शिर्क नहीं करना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे, बेटे शिर्क नहीं करना, अकीदत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। हम अपने बच्चों को अकायद के मामलात में बहुत दूर रखें। अकीदा सिखाइए अपने बच्चों को, अपने वक्त देंगे तभी अकीदा सीखेंगे वो। इसी तरह हज़रत लुक़मान ने आज भाई भाई का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा, भाई बाप बेटे से नहीं बोलता और भाई भाई
ला तुसय्यर खद्दा का, ए मेरे बेटे गाल फुला कर नहीं मिलना, किसी से भी मिलना, गाल नहीं फुलाना, मुंह नहीं फुलाना, अकड़ नहीं होना, तो मिलना नरमी के साथ मिलना। आज हम क्या कहते हैं, अरे थोड़ी सी दौलत, लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख के आदमी क्या बने, और फोन से बात, कहाँ पे, अरे फला जगह, सही से बात नहीं कर रही, सही से लोगों के अंदर अदब चला गया, उनका देखना नहीं चाहते। अरे वो पर आज ये मामला है, बच्चों का हम खराब क्या करे, अरे गरीब आया कोई बड़ा, अरे बापू के लिए कुर्सी ला करे, कुर्सी लाया, और वहीं पर एक आदमी एक तो नीचे बैठ गई, औकात नहीं मेरे बराबर। ये क्या बात है भाई, वो मुसलमान है, आपका भाई है, अरे ईमान है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला है। ये बच्चों को हम अखलाक दे रहे, ये माँ बाप से सीखते हैं सब, और आगे चलकर रोते हैं, हाय परेशानी, मेरा बच्चा मेरा साथ नहीं। शिकायत किस बात की कर रहे हो, सारी चीजें तो तुमने किया है, शिकायत फिर क्यों, फिर शिकायत क्यों, जब तुमने सब चीज कर डाला तो शिकायत क्यों कर रहे हो, शिकायत नहीं करनी चाहिए आपको। मेरे भाइयों, यह कायद का मामला है, वक्त हो चुके, बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इसी तरह हज़रत लुकमान ने कहा, या बुनैया अक़िमिस सलात, मेरे बेटे नमाज नहीं छोड़ना, नमाज पढ़ना। इतने लोग बैठो, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पढ़ो, कितने लोग आज फजर की नमाज पढ़े, और कितने लोगों ने अपने बच्चों से कहा चलो नमाज पढ़ते हैं। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पढ़ो, कितने लोगों ने कहा, किसी ने नहीं कहा, अल्लाह माशाअल्लाह 2-4 के, खुद बाप बड़ा सोना उठे ना बेटे वो जगाने आएगा, बेटा खुद जाकर बेशरम को जगा वो जगाने आएगा, बड़ा 2 बजे 2:30 बजे वो सोता वो जगाने आएगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन से जोड़िए, वरना ये दिन दूर भी आज भी वो प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है कि इनके मदारिस, इनके मसाजिद को किस तरह बंद किया जाए, या किस तरह इनके उलमा को फंसाया जाए, या किस तरह इन्हें मुनहदिम किया जाए, इन्हें तालीमी मैदान से दूर किया जाए। ये तमाम के तमाम प्रोपेगेंडा तैयार किए जा रहे हैं और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। वो दिन आज आ चुका है, हमारे कई मसाजिद, कई मदारिस टूट भी चुके, छिन भी गए हैं, लेकिन आज भी हमारी आंखें नहीं खुली है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है हम अपने बच्चों को आगे लाए तालीम की मैदान में, और तालीम से उन्हें जोड़े, अकाइद से जोड़े, मदारिस और मसाजिद का ध्यान रखें, ख्याल रखें। उनके जिम्मेदारान से मैं अपील करूंगा कि मसाजिद और मदारिस पर जिम्मेदारी के साथ उसका हक अदा करें। आप जिम्मेदार हैं तो ये मत सोचे कि हमें जिम्मेदारी ले लिया हो, अब मैं कुछ भी करूँ या नहीं। हर एक आदमी जिम्मेदार है, मस्जिद हो, एक आदमी सब चीज भार नहीं उठा सकता, हर आदमी को उसकी मदद करनी होगी, हर इंसान को उसके कंधों से कंधा मिलाना होगा, तब मसाजिद और मदारिस चलेंगे, वरना वो दिन भी दूर नहीं जो बचे कुछ मस्जिद है या जो बचे कुछ मदारिस है वो भी छीन लिए जाए। मेरे भाइयों,